chalo. So we will be doing series combination of capacitors. We will draw capacitors in series, and this is the nth capacitor, which is finally earthed. Now let us understand charge distribution, how charge is distributed. When we connect this capacitor system to a battery, the battery supplies charge to this. The battery supplies charge. Suppose it supplies Q charge to this, then what will happen? This plate will acquire some charge plus. Now before this plate, which acquires a charge positive, before this plate there is a H letter. Do you see this H? I am drawing this in with some other color. This is that H letter. Consider this is just like H. That means this is the second plate of the first capacitor, and this is the first plate of the second capacitor. So this letter H, that means what? This plate, actually this is a metal plate, and this plate, this is also metal plate. These are connected by a wire. So before this plus charge, this charge will be, this plate will have some induced charge minus Q. If this is plus Q, this plate, then this induced charge will be minus Q, and here it would be plus Q. Again in detail, why minus Q, why not little less than that? If there is any flux leakage, then there will be a little less flux induced. I had told you this case of two spheres. If the inner sphere is given some charge plus, then all the electric flux coming out of this inner sphere will hit the outer sphere. So if this inner sphere has a charge Q plus, then the inner surface where all the flux lines hit will be induced with equal and opposite charge minus Q. So that's why. So if all the field lines hit another body in front of it, then the inducing charge and the induced charge become equal, and we call it 100% induction. But if you give charge to a plate which is like this, suppose you have given a charge to a plate and there is another plate like this, this is another plate in front of this plate, then what will happen? Some flux will move out of this plate and some flux will hit this plate. So if this has a charge Q plus, this plate will not be having the same amount of charge. Why? Because all the flux lines are not hitting this body in front of it. Maybe its charge may be a little less than that, say Q by 3, Q by 2, like that. Okay. So that is the reason why we keep capacitor plates of same size and very close to each other, so that all the flux field lines coming out of this positive plate hit the negative plate. That's why we do this. All the field lines coming out of this positive plate hit the negative plate. That's why if you give positive plate plus Q charge, minus Q charge will be induced on the next negative plate, equal. Okay, that was the first idea. The second idea is that if this is negative charge, this will be again positive charge. प्लस माइनस मत गिनना कि भाई इसमें तो 6 हो गया, इसमें 4 था. Don't count like that. It is just for showing this thing. So similarly, it is again plus Q and this would be minus Q. This will be again plus Q. Why? Because induction will be equal and opposite. Similarly, this plus Q will induce minus Q on the next plate, and this thing will go on till the last one is again plus Q charge, and here it will induce minus Q on the nearest plate and plus Q to the other end. That means what? That is R. So that charge is like bad debts. खराब आदमी को लोन दे दिया, वो पैसा गया. That means this charge given to earth, the charge is gone forever. So this is the charge orientation. Now जोर का झटका, हल्का झटका हल्के से लगेगा. That is this thing. What is the charge stored in this first capacitor? There is a capacitor C1, suppose. What is the total amount of charge stored in this? Two options. Two options, 0 or Q.
what do you think? Total charge stored in first capacitor. Positive plate is having plus q charge, negative plate is having minus q charge. So what is the total amount of charge? Are the plates connected among them between themselves so that the plus and minus charge recombine and make it 0? No. So the total charge is not 0. We call it q only. It means by definition that positive plate is charged with plus q and the negative plate is charged with minus q. That means the total charge is q only, not 0. Okay. So these are the charge q. So these also have same charge q. Third, same charge q. So all the capacitors will be having same charge q. So idea number 1 that we learned from this series combination of capacitors. What? All the capacitors store equal charge. Concept 1. Ready? All the capacitors store equal charge in series. Number 2. In series, all the capacitors store equal charge. Number 2. That is, number 2 is total charge of the system. Total charge of the combination. Total charge of the combination. Total charge stored in this combination. Q plus Q plus Q, we may write here with an arrow n number. That means n number of capacitors are connected. So C1, C2, C3, करते करते लास्ट वाला क्या हो जाएगा? C suffix n, nth capacitor. So total charge would be Q plus Q plus Q plus Q n times, that is NQ. गलत जवाब. No. It would be only Q. बोला था हल्का झटका धीरे से लगेगा, लग गया. That is, if I tell you that suppose you are inside a room where there are 5 mirrors, and what happens, you can see your image 5 times behind 5 mirrors, है ना? So how many people are inside that room? Only 1, not 6. You and your loneliness, you and all the images in that room. It is not 6 then, it is only 1 because the person is 1. Now if you move out of the range of the mirrors, then how many images will be seen? 0. So actually there was 1 person only. Other were images only, not real. Similarly, only Q charge was supplied by the battery. If you could have made it NQ, ये तो पैसा डबल करने जैसा वो हो गया स्कीम, फ्रॉड स्कीम हो जाएगा. क्यू चार्ज दे रहा हो, बन जा रहा है NQ. तला तो होल वर्ल्ड विल कम टू यू कि भाई मेरा भी चार्ज डबल कर दे. तला तो योर बैटरीज एंड ऑल दोस थिंग्स, उसका चार्जिंग का प्रॉब्लम ही खत्म. उसलिए ऐसा नहीं होता. व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट क्रिएट चार्जेस नॉर कैन डिस्ट्रॉय चार्जेस. चार्ज कंजर्वेशन. So Q charge given, so total charge in the system is Q only, not NQ. Then why are these Q appearing? They are appearing like those images appeared. ये Q को अगर हटा लिया, देखो टेक्नोलॉजी का हेल्प ले रहा हूँ. I don't know whether it will support me or not. भाई टेक्नोलॉजी किधर गया रे? इधर. अब देखो मैं इसको ले रहा हूँ. भाई अरे तेरे को नहीं बुलाया रे भाई. हाँ आया तो चल हम लोग साइड में चले जाते हैं. चल साइड में चले जाते हैं. टैंग टैंग चला गया ये. अब देखो नाउ इफ यू मूव दिस वन वेयर यू हैड एक्चुअली सप्लाइड चार्ज कितना Q. अब इसका क्या होगा देखो. कालिया बोलो. अब इसका क्या होगा देखो. अब ये होगा कि दिस माइनस Q charge and this plus Q charge are connected by a wire, so they will come and recombine. कोई भी उसको इधर से टानने वाला नहीं था, as it was initially here. It had pulled this minus Q charges so that this doesn't recombine with plus Q. But now as you take it off, अब ये plus minus मिलके 0, ये plus minus मिलके 0. Similarly, all the plus and minus will recombine and make it 0. So the rest of the charges is how much? 0. Only charge present was this plate where practically you had supplied some charge from the battery Q. That's why total charge in the system is Q only. These are the 2 points we learned. So if we connect capacitors in series, idea 1,
all the capacitors will have same charge. Second thing, total charge will be Q only. So इसको मैं इजीली याद रखने के लिए ऐसे बोलता हूँ, Q each equals to Q total. याद रखना एज अ फॉर्मूला, याद रखना, बिकॉज इट विल हेल्प यू डूइंग न्यूमेरिकल्स व्हेन यू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड सम्स, तब हेल्प करेगा. Q each माने ईच ऑफ द कैपेसिटर जितना चार्ज स्टोर करेगा इक्वल्स टू Q टोटल. टोटल चार्ज स्टोर्ड बाय द सिस्टम और कॉम्बिनेशन. चलो ये दो आइडिया हो गया. थर्ड, इसमें क्या होता है, दो आइडिया होगा. थर्ड, इन सीरीज होता क्या है, वोल्टेज ना शेयर हो जाता है. वोल्टेज शेयर हो जाता है बाय कैपेसिटर्स. वोल्टेज शेयरिंग मतलब फिर से ड्रॉ करो, बार बार करते करते वी विल लर्न, प्रैक्टिस करते हैं. चलो, वोल्टेज शेयर, दैट मीन्स पिक्चर ड्रॉ करो, बिकॉज कितना भी लिख लो, कितना भी सुन लो, पीडीएफ, नोट, यूट्यूब वीडियो, जाए करो ना, वॉट एवर यू डू, अनलेस यू ड्रॉ इट बाय योर हैंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, सीखोगे नहीं. दिस इज कैपेसिटर C1. व्हेन यू हैव सप्लाइड इट विथ अ चार्ज Q फ्रॉम द बैटरी, वी आर कमिंग बैक टू द सेम context. Its potential difference across the 2 points will be suppose V1. Potential difference across this may be V2, and the same across this may be V3. So that V3, so that this similarly will be having a potential difference of Vn. So what I mean to say is that potential shared means what? Total potential difference from here to here. थोड़ा नीचे हो गया. Total potential difference from here to here. V2 को ऊपर लिखता हूं. This is V, and that is given by V1 plus V2 plus V3 plus Vn. एग्जाम्पल बता रहा हूं. अच्छा, इसका C2, C3 ये सब भी लिख देना. Cn. But charge stored in each and every capacitor is Q. You may not, from now on, you may not write plus Q minus Q all the time. एक ही बार में लिख सकते हो कि इसमें चार्ज कितना Q, इसमें चार्ज कितना Q. हाँ, Q मेरे से अच्छे तरीके से लिख सकते हो, बट होगा Q ही. सो टोटल जो चार्ज है Q, वोल्टेज ऐसा हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn. ऐसा शेयरिंग इसलिए होता है, माने को समझो कि when you supply a total voltage of V, say you have connected this system to a 10 volt battery, maybe this consumes half volt, this consumes 1/4 volt, this consumes 4 volt, this may be consuming 3 volt. So total voltage consumed by this plus this plus this plus this is the total voltage that you had supplied with the help of this battery. So battery supply, that is input V, is equal to voltage spent or consumed by capacitor. ये कुछ करके voltage store करके रखा हुआ share. So total voltage is V equals to this much. Now this gives us a nice formula. How? So this V can be written as this V. See, in this chapter एक ही तो formula सीखा हूँ, Q equals to CV. So from this we find V equals to Q upon C. If V equals to Q upon C, so V1 equals to Q upon C1, V2 equals to Q upon C2, V3 equals to Q upon C3, dot Vn equals to Q upon Cn. So we can take Q common, 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3 plus dot 1 by Cn. इसको इक्वेशन 1 देकर रखो, बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है, हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा. क्लास 12 स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 क्या इक्वल्स टू V. So this formula we got. Now in place of these capacitors, इतना सारा capacitors का बदले में, if you can have a single capacitor, if you can have a single capacitor which can do the same job, we call it equivalent. Equivalent capacitor. तो बताओ तो, what is the job of a capacitor? What does a capacitor do? Very good, very good. Store charges. That is its job. तो इतना सारा कैपेसिटर्स मिलके in the last case had stored what amount of charges? NQ की Q?
क्यू चार्ज, नॉट एन क्यू. ओके, तो इतना सारा कैपेसिटर्स मिलके क्यू चार्ज स्टोर किया था. ये अकेला क्या किया, इट सिंगली स्टोर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू. व्हेन, जबकि इसे भी वही मौका दिया गया. यहां पे मौका कौन है, बैटरी. मौका मीन्स कंडीशन. So what is the condition? The battery. So the battery supplied here at the ends of this and this was having what total voltage? V. So this should also be subjected to the same test. Test तो एक ही क्वेश्चन पेपर तो सेम ही देना पड़ेगा ना. तो इसका क्वेश्चन पेपर में भी दिया था वोल्टेज, इसको भी दिए. Then its equivalent capacitance would be C equivalent. C eq. Then what would be the equation for this equivalent capacitor? What would be the equation for this equivalent capacitor? We are going to write this. अच्छा इसको छोटा कर लेता हूँ. Let us write this here. For this equivalent capacitor, we can write Q equals to CV. So V equals to Q by C equivalent. Because इसका capacitance कितना है, C equivalent. This is equation 2. So just by comparing equation 1 and 2, लेफ्ट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी दोनों का, राइट साइड में ऊपर में क्यू न्यूमरेटर, ऊपर में क्यू न्यूमरेटर. सो वी कैन गेट कंपेयरिंग और फ्रॉम 1 and 2, 1 by C equivalent equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus dot 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 1 by Cn. और यहां से हम लोगों का जर्नी शुरू होता है. 1 by C equivalent equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 dot dot 1 by Cn. So this is the formula. यहाँ से हम लोगों का जर्नी शुरू होता है. 1 by 1 by 1 by करें. And whenever you face these types of equations 1 by, then you always get this thing. What? Here, what happens? 1 by C equivalent equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus dot 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 1 by Cn gives us a superb result. That is, C equivalent is less than the smallest capacitance. ये जो n नंबर ऑफ कैपेसिटर ले लिया ना, 1 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड, कुछ भी ले लो, सबको अगर जोड़ोगे ना सीरीज में साइड बाय साइड, देन व्हाट विल हैपन, द इक्विवेलेंट विल बिकम इवन लेस देन द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. तो मैं जो एग्जांपल दिया वहां पे स्मॉलेस्ट मेंबर मे बी 1 बोला था, 1. तो अगर सबको जोड़ोगे सीरीज में, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इवन लेस देन 1. एक चेक करके देखते हैं, चेक. तो ये चेक हो रहा है. 1 माइक्रोफैराड, पिक्चर ड्रॉ करो. 2 माइक्रोफैराड, और कितना लेना है, 3 माइक्रोफैराड. दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक. सो लेट अस फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस. 1 बाय C इक्विवेलेंट, 1 by 1, 1 by 2, 1 by C2 हुआ, 1 by C3 कितना, 1 by 3 इक्वल्स टू एलसीएम कितना हो गया, 6. ऊपर में कितना हो जाएगा, 11. ये 1 से ग्रेटर है ना लेस है, ये जो भी है एक ग्रेटर है. ये नहीं चाहिए हम लोग को, ये चाहिए, सो दैट स्टूडेंट्स डोंट मेक मिस्टेक्स. 1 by C इक्विवेलेंट मिला है, इट इज नॉट C इक्विवेलेंट. स्टूडेंट्स समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, forget revert this, I mean make the reciprocal of that. 1 by C को थोड़ी चाहिए, हम लोग को चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, C इक्विवेलेंट. सो दैट विल बिकम 6 by 11. अब बताओ ये ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? 6 by 11 इज लेस देन 1. तो अगर ये लेस देन 1 है, 1 मैटर नहीं करता, मैटर करता 1 इज द वैल्यू ऑफ द लीस्ट कैपेसिटेंस हियर. सबसे छोटा कौन था तीनों में से, 1. सो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इवन बिकम्स लेस देन दैट. तो इससे जो आइडिया मिला उसको हम लोग नंबर 4, ऐसा कुछ होगा नंबर, शायद नंबर 4 में लिख के रखेंगे. इन सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बोलो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस कि डिक्रीजेस? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीजेस.
कितना डिक्रीज करता है? बिकम्स लेस देन द लीस्ट वैल्यू, लिस्ट मेंबर। ऐसे लिखने से शायद याद रखने में इजी होगा। लिस्ट मेंबर जो है उससे भी छोटा होगा। ये मैं व्हेन आई वाज वर्किंग इन भोपाल आई हैड सीन एन एड जो कि फ्लैट टीवी वाला ऐड हुआ करता था। तब के ज़माने में शुरू में फ्लैट टीवी आ रहा है, तो वहाँ पे किसी ने ऐड दिया है कि फ्लैट टीवी मे बी ओनिडा और समथिंग कंपनी। अब सोनी का ऐड दिया हुआ है, सोनी लिखा है फ्लैटेस्ट, फ्लैटर देन द फ्लैटेस्ट फ्लैट। सोनी टीवी का ऐड दिया, फ्लैटर देन द फ्लैटेस्ट फ्लैट। वैसा ही ये है, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द कैपेसिटर्स इन कॉम्बिनेशन। इसका एग्जाम्पल भी देख लिए, सो दैट इज अ वेरी गुड फाइंडिंग। नंबर 5 में लिखो, फिर से वो फॉर्मूला में चलो मान लेते हैं कि ओनली 2 कैपेसिटर्स आर देयर, तो लिखना फॉर, बार बार यही करेंगे, सबसे ज्यादा यही काम आएगा, फॉर 2 कैपेसिटर्स। 2 कैपेसिटर रहेगा और ये कर देंगे 1/C1 प्लस 1/C2। जबकि बार बार ये करेंगे तो एक बार डायरेक्ट कर देंगे C इक्विवेलेंट। तुम लोग सोचोगे ऐसे हुआ कैसे, सोचोगे ऐसा हुआ कैसे, बॉक्स बना देना। देखो ना, LCM C1 C2, ऊपर में C1 प्लस C2, 1/C इक्वल्स टू दैट, तो C को उल्टा हो जाएगा, C इक्वल्स टू C1 C2 बाय C1 प्लस C2। ये हो गया, ये बहुत काम आएगा फॉर 2 कैपेसिटर स्पेशली। नेक्स्ट पॉइंट करो, मे बी नंबर 6 लिखो फॉर इन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, फॉर इन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। आइडेंटिकल कैपेसिटर मतलब सबका कैपेसिटेंस सेम है। 1/C1 को क्या लिखेंगे, 1/C, 1/C2 क्या लिखेंगे, 1/C, 1/C3 1/C। अरे कितना बार ऐसे, n बार, n capacitors, so it would be n times 1/C। C इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, C/n। मतलब क्या हुआ, नॉलेज को ऐसे लैंग्वेज में लिखो कि C ईच, सारे तो सेम है, तो एक एक का कैपेसिटर ले लो, किसी एक का, C ईच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। ऐसा इजी हो जाएगा, शॉर्टकट। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, पिक्चर ड्रॉ करो, लिखने से बेटर है। पिक्चर ड्रॉ करो ऐसे, ये 10 माइक्रोफैराड करके ईच है, 10 माइक्रोफैराड ऐसे 4 बार लिख दो। तो बताओ ये 4 अगर 10 माइक्रोफैराड करके कैपेसिटर है, व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स, कितना हो जाएगा, 4 है, तो मैंने C ईच कितना हो जाएगा, 4, C इक्विवेलेंट लिख रहा हूं मैं, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ईच कितना 10, सॉरी ईच 4 नहीं, ईच 10 कैपेसिटर डिवाइडेड बाय नंबर इज 4 कैपेसिटर्स हैव बीन कनेक्टेड हियर। 4 कैपेसिटर है तो नंबर इज 4, तो ईच कैपेसिटेंस बाय 4 दैट इज 2.5 माइक्रोफैराड। ईच 10 कर गए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड 4, so 10/4 that means 2.5 माइक्रोफैराड। अब ये बताओ 2.5 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया एक एक से कि इट डिक्रीजेस, so whenever we connect capacitors in series actually total capacitance decreases। आइडिया क्लियर हुआ, ठीक है। तो मान लो तुम चांदनी मार्केट चले गए कि कैपेसिटर्स चाहिए, वहां पे बोला भाई हम लोगों का पास, तुम बोले कि मेरे को ना चाहिए 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस। वो लोग बोला अरे नहीं है, फैक्ट्री में बनता ही नहीं अभी 10 माइक्रोफैराड। तो बोला कैसे, तो कितना बनता है, बोला कि एक एक ना 30 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर है हम लोगों के पास, 30 माइक्रोफैराड ईच, ऐसा है। बट यू रिक्वायर 10 माइक्रोफैराड फॉर अ प्रोजेक्ट दैट योर कॉलेज हैज गिवन यू टू डू। तो तुमको 30 माइक्रोफैराड से यू हैव टू मेक 10 माइक्रोफैराड ना। सो हाउ डू यू मेक दैट, यू हैव टू डिक्रीज दैट 30 to 10, 3 times decrease, so you will connect 30, 30 and 30 in series, so that the equivalent will become 30/3, that is 10. So if we do not get capacitors of less value, then we get that by connecting capacitors in series.
आइडिया क्लियर हुआ, फर्स्ट आइडिया जो व्हाई वी कनेक्ट इन सीरीज, ठीक है। इसका और एक ऐसा था, सीरीज में जो जो फॉर्मूला सीखे मोटा मोटी आइडिया क्लियर हुआ। वोल्टेज शेयर होता है और चार्ज इक्वल इन एवरी कैपेसिटर, हाँ ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट दैट वुड बी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल बहुत इजी है, सिंपल है। जैसे कि सपोज इफ वी ड्रॉ दिस कैपेसिटर सर्किट, दिस वन, अरे यहां पे तो सबका मे बी ये थोड़ा टेढ़ा है पर जो भी है ठीक है चलेगा। दैट मीन्स लास्ट वन यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, द लास्ट वन लाइक दिस, बीच में दो डॉटेड लाइन दे देना, ठीक। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बिटवीन ए एंड बी, मे बी 2 पॉइंट्स। अब क्या है जानते हो, इसका दोनों एंड में हम लोग क्या लगाएंगे, बोलो व्हाट इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस टू एंड्स, अ बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, देन ओनली चार्जेस विल फ्लो। बैटरी लगाएंगे तो बैटरी ऐसे लगाएंगे ना, ए और बी का बीच में नीचे जगह ही नहीं है मेरा, तो क्या करेंगे ऊपर से लगा देंगे, सेम होगा, सेम ही होगा। मैं और एक शॉर्टकट बता रहा हूं, बैटरी भी दिखाने की जरूरत नहीं, यू जस्ट शो 2 प्रोजेक्शंस कि भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट का बीच में वी वांट टू कनेक्ट अ बैटरी जिसका वोल्टेज है भी पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन अक्रॉस दिस। होगा क्या, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन समझने के लिए, सीरीज तो आराम से समझ में आ जाएगा, पैरेलल समझने के लिए और एक आइडिया बता रहा हूं। सुनो, पैरेलल कॉम्बिनेशन वो है, पैरेलल कॉम्बिनेशन समझने के लिए इफ ऐसा होता है, ये कोई डांस का स्टाइल नहीं दिखा रहा हूं, ऐसा माने ये है इफ द सर्किट में चार्ज जो जा रहा है, इफ दैट इज ब्रांच्ड, ये बोलना का मतलब है ब्रांच्ड मतलब इफ द चार्ज आफ्टर मूविंग टू अ सर्टेन पॉइंट सीज ऑप्शंस दैट इट मे बी गेट ब्रांच्ड, इट मे फ्लो थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस थ्रू, देन वो पैरेलल में होगा ही होगा। दैट इज द आइडिया। दैट मीन्स इफ चार्ज फ्लोज थ्रू दिस क्यू, टोटल चार्ज बैटरी से उठ के आएगा ना, प्लस क्यू चार्ज जैसे पहले दिखाया, इसमें से सम पार्ट ऑफ दिस इसमें से जाएगा, सम पार्ट ऑफ दिस इसमें से जाएगा, सम पार्ट ऑफ दिस नीचे से जाएगा, ऐसे करते करते द लास्ट वन उसमें से कुछ चार्ज जाएगा, तो ऐसे करके यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस, प्लस ये इंड्यूस करेगा माइनस, प्लस इंड्यूस करेगा माइनस, इसका प्लस इंड्यूस करेगा माइनस, तो ये जो इंड्यूस करेगा यहाँ पे माइनस, फिर जो प्लस इंड्यूस करेगा इधर, वो कहाँ जाएगा, अर्थ, बिकॉज आई हैड टोल्ड यू दैट द सेकंड पॉइंट इज ऑलरेडी ऑलवेज कनेक्टेड टू अर्थ, सो नो प्रॉब्लम। तो सब में प्लस माइनस करके है, बट टोटल चार्ज प्लस और माइनस मिलकर 0 नहीं होता है, पहले बोला, तो कितना होता है, चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर Q1, चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ द सेकंड कैपेसिटर Q2। अरे तू नीचे कैसे आ गया, तू वहां जा, हाँ बातें होता मेरा, देन Q3 like this, these are the charges, so this is Qn, total charges। so what is the total charges here, Q total, as the total charge has been distributed or branched in different path, so we will add them like this। this is the basic of parallel combination। Q charge आया, n रास्ते मिले, so they got separated or branched into n parts। तो इसी का स्टाइल ऐसा है, ये क्या है, ब्रांचिंग, ये मतलब क्या है, मतलब है they are in parallel, and if the charges cannot have a branching, I mean a path where they can get separated, series। Why? देखो पीछे जाके एक बार देख लेता हूं, यहां से जो Q चार्ज आया था, it had no other option than flowing through this, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये सामने वालों को इंड्यूस करेगा, वो सामने वालों को इंड्यूस करेगा, so they would be having equal charge, है ना, that is series। and if you see charge can be branched, तो वो क्या हो जाएगा, that is parallel। क्लियर आइडिया, तो ब्रांच्ड याद रखना, ये सिंबल ऐसे, तो हाँ अब देखो फ्रॉम हियर वी कैन राइट लाइक दिस, Q1 इक्वल्स टू CV, एक ही तो फॉर्मूला है चैप्टर में, Q इक्वल्स टू CV, चलो C1V, अच्छा तो यहाँ पे V वुड बी इक्वल फॉर ऑल ऑफ दीज, नोटिस करो ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस V। व्हाई, देखो मैं ये दिखा रहा हूं, गया, ये सब गया, जाओ अब क्या हो गया, आई हैव टेकन ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स, उसको फेंक दिया बाहर, बाहर नहीं रूम में ही फेंका हूं ऐसे, सो दैट आई कैन अगेन रिकलेक्ट देम, तो ऐसे फेंक दिया, तो सोचो तो Q charge goes and total Q charge gets stored into the first capacitor plates, that means
circuit is still on, ठीक है ना, but the battery that was connected across A and B will be giving voltage how much, say 10 volt. So total 10 volt will be obtained by this capacitor ends, दोनों एंड में तो 10 volt applied होगा. Now if you are back with no bank normally, then what will happen, that all the capacitor plates, all the capacitors will be receiving same voltage. Why? You could have done the same thing with this also. ये भी तो कर सकते थे, सेकंड को रख दिया. सो सेकंड वाला को अब ए और बी का बीच में जो वोल्टेज है वो मिलेगा. सो पैरेलल में बेस्ट आइडिया इज दिस, इन पैरेलल voltage applied across each element, it may be capacitor, it may be resistor, it may be other things. पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा. चलो पैरेलल का फर्स्ट आइडिया ऑफ पैरेलल क्या है, वोल्टेज सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर, वोल्टेज सेम. और दूसरा आइडिया यहीं पे बना देते हैं, चार्ज Q गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वो जो ऐसे दिखा है ब्रांचिंग, दैट गारंटीज एकदम फॉर श्योर द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ब्रांचिंग ऐसे. ठीक है, वी अंडरस्टूड दैट these two ideas. Now we are going to apply the values. So all the capacitors are subjected to a potential difference of V. Okay, so सबके लिए क्या लिखा है, Q1 C1V, Q2 C2V. C तो अलग अलग है, C1 C2 C3 Cn, पर क्या है V सेम है, प्लस C3V प्लस डॉट डॉट कर दो प्लस CnV, सबका साथ V कर दिया. नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं. सो वी गॉट Q इक्वल्स टू, देखो तो V कॉमन ले लेंगे अगर, तो C1 प्लस C2 प्लस C3. देखो अभी क्लास 12 में ना, इन नाउअडेज ये सब नहीं आ रहा है, पर सम ईयर और द अदर ये दे देता है. तो स्टूडेंट पढ़ के नहीं आता है कि अरे बेसिक डेरिवेशन है छोड़ दो, एग्जाम हॉल में ना इन लेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम अब तुम्हें सोचना पड़ेगा कहाँ से प्रूव करेंगे. सॉलिड साम बना के आ गए, बट दिस प्रूफ में फेच यू 2 marks वेरी इजीली. सो लेट अस डू दिस. और कंसेप्ट भी तो बनेगा इससे. नंबर 1. नंबर 2, इफ वी थिंक ऑफ अ सिंगल कैपेसिटर विच वी कॉल इक्विवेलेंट कैपेसिटर. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए क्या होता है कि सेम, हाँ बोलो, because total charge was distributed among these capacitors. So total charge stored by the capacitors, some stored by this, some stored by this, some stored by this. So the total storage will be added. Okay. Now see this equivalent capacitance will be having a capacitance C eq, and that will be subject to the same question paper, same देना पड़ेगा बोला था. That means इसको भी उतना ही वोल्टेज दे दो जो वो कॉम्बिनेशन को दिए थे, कितना V. So it will do the same job. कैपेसिटर का जॉब क्या है तुम लोग बताए थे, स्टोरिंग चार्जेस. So it will store same amount of charge. How much Q? That means what? पॉजिटिव प्लेट में प्लस Q, नेगेटिव प्लेट में माइनस Q. देखो सेम थिंग इज रिपीटिंग नंबर ऑफ टाइम्स, सो बिकमिंग इजियर एंड इजियर धीरे धीरे, है ना. सो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू CV, एक ही तो है, C इक्विवेलेंट इनटू V, इक्वेशन 2. अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे दोनों साइड का. सो वी गेट C इक्विवेलेंट, C1 C2 C3 सब ऐड होने लगेगा प्लस Cn. सो दिस फॉर्मूला टेल्स अस दैट, कॉमन सेंस बनाएंगे, सिर्फ फॉर्मूला में मत रहो, कॉमन सेंस बनाओ. क्या, इन पैरेलल, भाई आर तो किसका जैसा दिख रहा, हाँ ये इन पैरेलल क्या होता है, C इक्विवेलेंट इंक्रीजेस, बढ़ जाता है इक्विवेलेंट. सो चांदनी मार्केट गए, सेम दिल्ली का जाओ चाहे कोलकाता का, चांदनी मार्केट गए, यू गॉट अब 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स मार्केट में मौजूद है, बट यू वांट टू मेक 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स, यू वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटर, देन you will connect 10 capacitors of 10 microfarad in parallel. So they will add up to give you 100 microfarad value. So equivalent capacitance increases in parallel. ठीक है. और कुछ, हाँ और ये कर सकते हो, इसमें ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है. और एक पॉइंट कर सकते हो, पॉइंट नंबर ये था कितना, से दिस फार्मूला 3. ओके. एंड नाउ पॉइंट नंबर 4 ये कर सकते हो. नंबर 4, फॉर इन identical capacitors, अगर कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हो गए, देन C इक्विवेलेंट
फॉर n आइडेंटिकल n टाइम्स ऑफ c, एक एक का कैपेसिटेंस c करके था, तो टोटल कैपेसिटेंस वुड बी c प्लस c प्लस c प्लस c n टाइम्स, दैट मीन्स n टाइम्स c, दैट मीन्स n टाइम्स बढ़ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना। सो दीज आर द बेसिक आइडियाज, बट इसका साथ एक और 5 नंबर सिखा दे रहा हूं, स्पेशल केस, थोड़ा सा हायर लेवल, बट माना लेवल हायर नहीं, सीखना पड़ेगा थोड़ा, बट यू कैन इजीली अप्लाई देम इन बोर्ड लेवल एज वेल एज कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स। कैसा है, ऐसा देखो, when two capacitors are connected and the charge gets distributed, then with what ratio, with what ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अब ठीक लग रहा है, तो कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, चलो Q चार्ज दे दो, some part of this goes to be stored on the first capacitor C1, some part of this goes to be stored on the plates of the second capacitor C2, प्लस माइनस। नोटिस करके देख लो, एक बार बोला था जल्दी 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 फास्ट, एक बार बोला था मैं, पैरेलल में दो चीजें बोले थे, उसमें से एक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, सेकंड बोला था ऑल द प्लस प्लेट्स आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड ऑल द माइनस प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अनदर, मैच कर रहा है, ऐसा है, ठीक है। सेकंड थिंग, इफ Q charge flows through this system, Q1 and Q2, इसमें से एक चीज देखो, AB है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं यहां पे देखो तो VAB, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, यहां पे जो बैटरी डाले हैं 10 वोल्ट का, दिस कैपेसिटेंस इज ऑल्सो एंजॉइंग द सेम वैल्यू ऑफ वोल्टेज 10 वोल्ट एज वेल एज दिस कैपेसिटर, क्योंकि दे आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम 2 पॉइंट्स A and B, दैट्स व्हाई। सो VAB, V का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो एक ही है, Q इक्वल्स टू CV, सो V इक्वल्स टू Q बाय C, याद कर लो एकदम, V इक्वल्स टू Q बाय C, सो Q, अरे इसका तो Q1 है, C इसका तो C1 है, पर जो भी है वोल्टेज उतना ही होगा जितना सेकंड का है, उसका कितना, चार्ज स्टोर्ड Q2 और कैपेसिटेंस C2, सो देख रहे हो आइडिया, डिपेंडिंग ऑन C1 Q1 विल एडजस्ट इटसेल्फ, depending on C2 Q2 will adjust itself so that ratio of them become equal to VAB, voltage across them same होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, इससे एक आइडिया समझ में आ रहा है कि चार्ज स्टोर्ड का रेशियो निकालो, यहां पे लिख दो रेशियो बोल के, रेशियो ऑफ चार्जेस स्टोर्ड Q1 and Q2, Q1 by Q2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, कैपेसिटेंस का रेशियो का सेम की ऑपोजिट, मतलब मान लो यहां पे एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड, यहां पे है मान लो 20 माइक्रोफैराड, 20, किस में चार्ज स्टोर ज्यादा होगा, 2 ना 20, उसका आंसर ये देगा Q1 by Q2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, C1 by C2, क्या माने, क्या समझे, Q प्रोपोर्शनल टू C माने, समझे ना, माने 1/2 मैच कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट, मोर द चार्ज स्टोर्ड फॉर द कैपेसिटर ऑफ मोर कैपेसिटर, C1 अगर ज्यादा है C2 से, तब तो Q1 भी ज्यादा होगा Q2 से, लेफ्ट साइड और राइट साइड मैच कराओ, दैट मीन्स if you ever connect capacitors in parallel, then more the capacitance, माने more capacity to store charge, yes, more charge will be stored, है ना, मतलब more capacitance, more C, more the charge will be more RE लिखो, more Q, ये लिखने जा रहा हूं, more the capacitance, more the charge stored, याद रखो, make some basic idea, basic concept की, I'll remember this, based on these ideas you can build higher order ideas, higher order thinking like those. इन सीरीज भाई कैपेसिटेंस ज्यादा हो कम हो कोई बात नहीं, सब में चार्ज बराबर, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन सीरीज, है ना, वोल्टेज वाज शेयर्ड, V1 V2 V3 ऐसे, पैरेलल में उल्टा हो गया, वोल्टेज सेम सबका, बट चार्ज ये जो ऐसे करके दिखा है, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड माने ब्रांचिंग पैरेलल में हो जाएगा, और वो ब्रांचिंग कैसे होगा, देखो इससे ना एक चीज और दिखा रहा हूं, इससे
Q1/Q2 C1/C2, याद रखना इसको आगे लेके जाते हैं थोड़ा। कभी भी ऐसा मिले ना, एक स्टाइल दिखा देता हूँ। और स्टाइल क्या देखो, स्टाइल देखो, हाथ को मत देखो, उधर देखो, हाथ तो ऐसे कर रहा हूँ मैं, ये स्टाइल है। दैट मीन्स ऑलवेज एड 1 टू बोथ साइड्स, यू विल गेट दिस व्हाट। लेफ्ट साइड में क्या हो गया देखो, Q2 प्लस Q1, Q2 प्लस Q1, नीचे Q2, C2 प्लस C1, नीचे C2। अरे फ्रॉम दिस पिक्चर एक बार देख लो, Q1 प्लस Q2 दोनों को ऐड करने से क्या मिल जाएगा, Q, बिकॉज दिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दैट मीन्स दिस प्लस दिस, अगर मूवी में जैसे दिखाता ना पीछे आ जाता है बैकवर्ड, वैसे पीछे आ गया, कितना बन जाएगा, Q। तो फॉर दैट Q1 प्लस Q2 का बदले में Q लिख दो, डिवाइड बाई Q2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2, या तो C2 प्लस C1 एक ही बात है, C2। फ्रॉम दिस वी गेट Q2, अरे Q2 मिल गया, कैसे, हाउ मच इज Q2 फ्रॉम हियर, Q2 ऊपर जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q इनटू, बन गया। जल्दी लिखना, जल्दी, फास्ट। Q2 equals to Q into, just try to group them like this, group them, grouping करना सीख लो। C2 by C1 plus C2, isn't this bracket part a fraction? सोचो ऐसे, isn't this bracket part a fraction? C2 by total value कितना, C1 plus C2। इसको ऐसे याद रखो, देखो पिक्चर को एक बार देख लो, यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ पिक्चर में, पिक्चर को देख लो। वी वांट टू डिवाइड दिस Q बिटवीन दीज 2 कैपेसिटर्स, ठीक है। अब किसका बात करें, Q2 का बात कर रहा हूं मैं, यहां पे इतना आ गया Q2 वुड बी अ पार्ट ऑफ Q दैट हैज एंटर्ड दिस C2 कैपेसिटर, इट वुड बी अ पार्ट ऑफ Q, व्हाट पार्ट, दिस पार्ट, पार्ट माने फ्रैक्शन, से हाफ, 1/3, 1/5 लाइक दैट, तो इट वुड बी अ फ्रैक्शन ओनली, C2 by C1 प्लस C2। तो नोटिस करके देखो, यहां पे सिर्फ, यहां पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2, और यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, 2। दैट मीन्स Q2 चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ द सेकंड कैपेसिटर वुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज Q, टोटल चार्ज इनटू उसी का कैपेसिटेंस C2 by total capacitance C1 plus C2। If you want to repeat it there also, can you think, before I write, can you think how much charge will be stored on the plates of the first capacitor C1? Just think before I write. So Q1 is equal to total charge Q, उसी का एक फ्रैक्शन होगा, वो फ्रैक्शन कितना पता नहीं, वेरी गुड, यू गॉट इट, उसी का कैपेसिटेंस C1 divided by total capacitance C1 plus C2. So these are the two formulas. Directly you can find the charge stored on the plates of those capacitors. Easy है ना, इससे ये मिल जाएगा चार्ज स्टोर्ड। बस सीरीज पैरेलल बहुत सीख लिए, बहुत सीख लिए। अब ना 2-4 सम बनाते हैं, चलो तो सिंपल सम से पहले बनाते हैं सम, एक एक करके मैं इसी को चेंज करते जाऊंगा एंड वी विल बी फाइंडिंग कैपेसिटर। चलो प्रैक्टिस करते हैं। ये है 2 माइक्रोफैरड, ये है 4 माइक्रोफैरड, और ये है 6 माइक्रोफैरड। हो गया, नाम ना कुछ ऐसे देते हैं, बिकॉज A, B and C equivalent capacitance of this circuit, तो इसको बोलते हैं क्या, reduced circuit। CKT means circuit। So I'll tell you that as this is easy, you can instantly do this बिना पेन कॉपी का, but as things get tougher and tougher, better you draw reduced circuit, तो easy हो जाएगा। कैसे देखो, फर्स्ट जो है ये बेचारा अकेला है, किसी का साथ ना झूठ झमेला कुछ नहीं है, दैट मीन्स 2 माइक्रोफैरड लेके कोई डाउट नहीं, वो रहने दो। A और B का बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है B और C का बीच में। सो ये दोनों कैसे लगा हुआ है, सीरीज ना पैरेलल, पैरेलल,
पैरेलल बिकॉज दोनों का प्लस प्लेट लेफ्ट साइड माइनस प्लेट राइट साइड. सो ये दोनों पैरेलल में अगर लगा हुआ है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला इन पैरेलल? ऐड करेंगे कि 1 बाई करेंगे? ऐड. सो लेट अस ऐड देयर कैपेसिटेंसेस. 4 plus 6 that is 10. C1 plus C2 that formula 10 microfarad. So now we are left with this reduced circuit. इसे बोलते हैं इसका reduced circuit. क्या reduced हो गया? ये दोनों का equivalent now becomes single one. ये it's called a reduced circuit. And then again we will draw another reduced circuit of this. इसका भी reduced circuit क्या है? अब we are left with 2 capacitors. उसका बदला में सिर्फ एक ही कैपेसिटर ड्रॉ कर लो. तो फर्स्ट पॉइंट ए है और उस साइड का लास्ट पॉइंट कौन है? सी. ए और सी का बीच में लेट अस फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एज वी अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज सीरीज. सीरीज में दो कैपेसिटर अगर सीरीज में होता है, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या सीखे थे? एक फॉर्मूला शॉर्टकट सीखे थे, C1 C2 by C1 plus C2. ये शॉर्टकट है. अदरवाइज यू कैन डू 1 by 1 by को दो, यू कैन डू. अदरवाइज ये इजी है. So 2 into 10 divided by 2 plus 10. So it would be 2 into 10, 20 मत करना 20, है ना? 20 मत करना, कैंसिल करना. तो 5 by 3. और मैं ऐसे ही दिखा रहा था. तो ये कितना आया? 1.67 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. वेरी गुड, है ना? 5 by 3 1.67. चलो लेट अस डू अनदर वन. वो ऐसा है, ये कैपेसिटेंस है C, ये कैपेसिटर है C, ये कैपेसिटर भी C है. तो भाई कोई तो अलग हो जा? नहीं, कोई भी अलग नहीं होगा, सब C. ये भी C. अब ना कॉम्प्लिकेट कर लो भाई पूरा. ये क्या करोगे? यहां पे और एक डाल दो C, और यहां पे भी एक C कर लो. A B all capacitances are C. ऐसा करना. ये दोनों का बदला में एक ही कैपेसिटेंस हो जाएगा. कितना? पैरेलल में क्या हो जाता है? 2C. तो आइडिया इज इफ सपोज Q charge enters. So let me explain this. If Q charge enters, so at this point what do you think this charge is going to get distributed among between two paths? That means charge का branching होगा. branching माने series ना parallel. So let us consider like this कि ये पार्ट से ना Q1 चार्ज जाएगा और ये पार्ट से Q2. हालांकि ये वैल्यूज विल नॉट कम टू एनी पिक्चर, डोंट वरी, बट लेट अस कंसिडर कि इससे Q1 गया, इससे Q2 गया, सो दो रास्ते अलग हो गए. So these two parts at least are in parallel, that we understand. Now Q1 का क्या होगा देखते हैं. Q1 यहां से जाके कुछ पार्ट इधर से गया, ये पार्ट का नाम दे दिया Q3, और कुछ पार्ट्स इधर से गई, ये Q4. दैट मीन्स ये दोनों पैरेलल में है. फिर दोनों मिलके देखो Q3 और Q4 मिलके फिर से क्या बन जाएगा? जो आ रहा था Q1 वही बन जाएगा. ओके, और इधर से क्या होगा देखो, Q2 चार्ज दैट फ्लोज थ्रू दिस. मैंने ऐसे मान लो कि चार्जेस आर फ्लोइंग, ऐसे होता नहीं है, इंड्यूस्ड होता है, बट मान लो तो इजी हो जाता है. Q2 चार्ज इसमें से आया, Q2 चार्ज इसमें से आया, Q2 चार्ज इसमें से आया. सो व्हाट वी सी हियर, Q2 चार्ज इसमें से गया और इसमें से भी गया. सो दीज टू आर इन सीरीज. व्हाई? सेम चार्ज फ्लोज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन. एक आइडिया ये सीखे. सेकंड, यहां पे ESC और ESC, अब मैं रिड्यूस सर्किट ना ड्रॉ करके आई एम ड्रॉइंग इट डायरेक्टली, ओवर राइटिंग दैट बाय इरेजिंग दिस फर्स्ट. देखो C और C वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दीज टू आर इन पैरेलल. सो ये दोनों को मैं इरेज करके ओवरराइट कर दे रहा हूं. दैट मीन्स C और C क्योंकि पैरेलल में था तो ये दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 2C. अब देखो तो अब तो Q3 Q4 लेने का जरूरत नहीं. Q1 इससे भी Q1, इससे भी Q1. दैट मीन्स वी अंडरस्टैंड दैट दीज थ्री capacitors are in series.
दैट इज अनदर आइडिया। ये तीनों सीरीज में। नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू फाइंड 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/2c प्लस 1/c अगेन 2c LCM 2 plus 2 4 plus 1 5, so c equivalent is 2/5c. Or there is another idea. If you are going for competitive exam, then you may do this, but you have to understand this. c 2c ये c ऐसा नहीं है कि ये तुम हाँ अच्छा हम कोड छीत रहा हूँ। देखो c and this c, these three are in series, so you may take these two first, find equivalent of them, then you can again take this later to find next equivalent. You can do that, or you can take first one last one in series first, then जो भी आया इक्विवेलेंट उसका साथ ये सेकेंड वन को बाद में ऐड करके फिर से सीरीज का फॉर्मूला लगा 1/1 करके, तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा। तो वी विल बी सिलेक्टिव इन चूजिंग कैपेसिटेंसेस। देखोगे टेक्निक क्या है, ये सी और ये सी ये दोनों अगर सीरीज में है इक्विवेलेंट ना, सीरीज में हो जाता है आइडेंटिकल कैपेसिटर होने से कितना हो जाता है c/n, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज c/n। तो c और c दो है, n माने 2 कैपेसिटर्स, तो c और c का इक्विवेलेंट हो जाएगा c/2, c ईच बाय नंबर c/2 हो गया। अब c/2 का साथ 2c का इक्विवेलेंट लिखेंगे, ये दोनों का तो हो गया पहले c/2, उसका साथ एक ही बचा 2c, तो c/2 और 2c का इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं, ऐसे जस्ट मेंटल मैथ से ही बन जाएगा बिना पेन कॉपी का। फिर भी मैं एक बार करके दिखाता हूं। 2c एक हुआ और एक हुआ c/2, तो c1 c2 by c1 plus c2। अरे c तो लिखा ही नहीं, में लिखने का जरूरत ही नहीं है, यू जस्ट टेक द नंबर्स ओनली, लास्ट में c लिख देना साइड में, शॉर्टकट है। मैं क्या किया 2c सिर्फ 2 लिखा, c/2 का नंबर क्या हाफ, सिर्फ हाफ लिया, तो c1 c2 माने नंबर इंटू नंबर बाय नंबर प्लस नंबर, c1 c2 बाय c1 प्लस c2, साइड में c लिख देना इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, ये व्हाट आई गेस दैट यू विल बी कैंसलिंग दिस 2 and 2, मत करना, बाकी इफ इट साउंड्स गुड टू यू यू कैन डू दैट, अदरवाइज मैं बोल रहा हूं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करना सबको। अब करो, सबको 2 से मल्टीप्लाई किए, नीचे कितना आ गया 4 + 1 कितना 5, 2/5 आ गया, तो यहां पर सो दिस इज 2/5c। Otherwise, that was a different idea. You first found equivalent series of this c and c/2, then you found equivalent of 2c with c/2. कैसे? c1 c2 by c1 plus c2. Or you could have done this thing also. जो तुम्हें ठीक लगे you do that. ऐसा नहीं कि वो शॉर्ट है बोल के हमेशा ठीक ही है, तुमको ठीक लगेगा, कोई बात नहीं। If it appears कि नहीं, मैं तो नॉर्मल आइडिया से जाऊंगा, 1/this plus 1/this plus 1/this equals to 1/c equivalent। तो only don't forget just one thing, just to invert that, otherwise भूल हो जाएगा। ये 1/c equivalent मिला इतना 5/2c, तो इसको उल्टा करके 2c/5 मिला। So anyway, now reduce सर्किट में जो बोल रहा था ना, देखो जैसे सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होने लगा, जैसे होने लगा कॉम्प्लिकेटेड, अब देखना बुक में जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सम रहेगा वो भी रिड्यूस सर्किट से सॉल्व किया हुआ रहेगा, मतलब दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड। ये तीनों का सीरीज, ये देखो ये यहां पे था तो ए पॉइंट, इसका बाद ये तीनों का सीरीज का बदले में मैं एक ही कैपेसिटर ड्रॉ करूंगा, कितना 2/5c, तीनों का इक्विवेलेंट करके, सो 2/5c आ गया, ये तीनों का बदले में ये 2/5c। देन कम्स दिस सीरीज, ये दोनों का कितना आया, C and C, it was c/2 and this point was B। ये तो आ गया 2/5c c/2, कैसे आ गया, ये दोनों कैसे आ गया, सीरीज ना पैरेलल, फिर से देख रहा हूं, ये पैरेलल, चार्ज गेटिंग ब्रांच्ड, ब्रांचिंग माने पैरेलल, तो ये दोनों अगर पैरेलल हो जाएगा ऐड कर देंगे डायरेक्ट,
So if you add final C equivalent तो कितना हो जाएगा, किसको ऐड करेंगे, 2/5C प्लस C/2. ऐसे ना सोच के ऐसे सोचो, 2/5 सिर्फ नंबर ले लो, C/2 नंबर ले लो हाफ, तो 2/5 प्लस हाफ कितना हो जाता है, 2/5 प्लस हाफ 9/10. उसका साइड में C लिख देंगे, 0.9 C. 2/5 प्लस हाफ करना चाहिए या अदरवाइज यू कैन राइट लाइक दिस, नो प्रॉब्लम. सो 0.9C या तो 9/10C. ठीक है, ये ऐसा करो, फिर से नॉर्मल में वापस आओ. कैसे, हाँ, लेट अस डू वन वेरी गुड सम टू अंडरस्टैंड एंड मेक गुड आइडिया. ऐसे करो तो 4 सिर्फ कैपेसिटर ले लो, तो 4, जस्ट टेक 4 कैपेसिटर्स, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू टेक सम वैल्यूज. से 2 माइक्रोफैरड हुआ, 4 माइक्रोफैरड हुआ, 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड. ठीक है, नाम दे दो ABCD. चलो ABCD नाम दो. This is our 4 capacitors connected like this across ABCD. Now अब क्या करेंगे, we will find C equivalent across A and B. AB का बीच में C equivalent निकालेंगे. What would be C equivalent between A and B? Answer, we will go to the answer later. See the idea first. Idea is whenever you will be given 2 points to find capacitance across, consider those 2 points as entry point and exit points of charges. Okay. So 10/3. So this was a good sum to understand also, and I'm happy that you are getting some answers. Let us see that is right or wrong. But before that, let us understand a process how we find this. ठीक, process is क्या करते हैं, एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट किसका हो गया, ये चार्ज का. कहां से मिलेगा वो, ये सफिक्स जहां पे दिया हुआ रहेगा या तो बोला हुआ रहेगा भाई ये दोनों पॉइंट का बीच में इक्विवेलेंट निकालो. तो कैसे करेंगे, देखो, कंसीडर सम चार्ज एंटर्स दिस ए पॉइंट, एंट्री पॉइंट, एंड देन सम पार्ट ऑफ दिस चार्ज बिकम्स Q1, जिसको यहां से जाना है और उसका टारगेट क्या है लाइफ में, मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं, उसको टारगेट है एग्जिट पॉइंट से निकल जाना है बस. दैट मीन्स Q1 चार्ज, मान लो कैपेसिटर से चार्ज जा रहा है ऐसे, मान लो AC में जाता है, DC में ऐसे नहीं जाता, बट मान लो कि ऐसे जा रहा है. सो ऐसे आके Q1, अरे Q1 तो अकेला निकल गया, हाँ तो वो अकेला है सर्किट में. सम पीपल आर अलोन इन लाइफ, होता है, बट खुश है. देखो अब बाकी का चार्ज जो है, सेकेंड पार्ट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको Q2 ले लो. दैट मीन्स सम पार्ट ऑफ दिस मेन चार्ज Q हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड Q1 एंड Q2. Q2 इसमें से भी गया, कोई रास्ता नहीं इसमें से भी Q2 जाना है, कोई रास्ता नहीं है इसमें से भी Q2 जाना है. देन ओनली इट में ऑल्सो गेट रिलीज टू द एग्जिट पॉइंट. तो ये तीनों में से सेम चार्ज जा रहा है. दैट मीन्स रेड्यूस सर्किट इसका ड्रॉ करेंगे A और B का बीच में, बिटवीन A एंड B. ये तो एक अकेला है C, नहीं यह वैल्यू दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरड, और ये तीनों क्या है कि सीरीज में है ये तीनों. तो इन प्लेस ऑफ दीज 3 we will consider a single equivalent capacitance here. This is called a reduced circuit. ये ना तुम भले ड्रॉ करो ना करो, बट दिमाग में आना चाहिए कि we are actually doing this thing. तो ये 2 माइक्रोफैरड, अब ये तीनों क्या है, सीरीज में लग गया, तो ये तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ सीरीज में. कैसे होगा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1, 1/C2, 1/C3. LCM 12 कर लेना, 4, 2, 3. दैट मीन्स it is 9/12. So C equivalent would be 12/9. 3 से काटो, 4/3. तो ये अगर 4/3 आ गया और ये अगर 2 आ गया, now these two are in parallel, so C equivalent final equals to, दोनों को ऐड कर देंगे, parallel add. So if you add these 2 plus 4/3, 3 2s are 6 plus 4, that is 10/3. Very good, you got right answers. But ये जो तरीका है ना to analyze things like this is very good and helps you very much during complicated sums. Complicated sums बहुत है in capacitance and in current electricity also. So much complicated कि बहुत तकलीफ होगा बाद में.
Yes. So we will be doing then next another one that is this thing. ये कैपेसिटर है, ये अनदर, और ये तीसरा. ए और बी का बीच में लगाओ तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? इफ ईच कैपेसिटेंस इज सी. जल्दी करो, अब टाइम थोड़ा कम लो, बिकॉज वी हैव डन दिस सिमिलर टाइप ऑफ आइडिया. ये तो बहुत इजी है. वैल्यूज, हाँ बोलो. 3c/2 इज द राइट आंसर. यस, 3c/2 इज द राइट आंसर. पहले इसको ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करके गिन लो कि आई हैव ड्रॉन द राइट पिक्चर. कितना कैपेसिटर से गिन लो, ड्रॉ करो और आंसर बनाओ. तो इसका रिड्यूस सर्किट ऐसा हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में, उसका साथ ही पैरेलल में. अगर बोलोगे ये कैसे समझ में आया, कि लास्ट प्रोसेस जो मैं दिखाया उससे कैसे समझ में आएगा, तो वो ऐसा है कि इससे क्यू चार्ज किया. आइडिया देखो कितना इजी है. क्यू चार्ज किया एंड दैट क्यू चार्ज, सम पार्ट ऑफ द चार्ज यहां से जाएगा. यस, एंड चार्ज इज गेटिंग डिवाइडेड थ्रू दिस. तो इसमें से Q2 गया, दोनों में से Q1 गया. सो वी कैन से दैट दिस बोथ ऑफ दीज टू आर इन सीरीज एंड दिस इज इन पैरेलल. ठीक है ना, दिस इज इन पैरेलल. सो वी कैन ड्रॉ द रिड्यूस सर्किट ऑफ दिस लाइक दिस. अ सिंगल कैपेसिटर इन प्लेस ऑफ दीज टू, C in series, so it will become C/2, और नीचे एक अकेला C. So these two are now in parallel, so we can get C equivalent as C plus C/2. Parallel में add हो जाता है, that means 3/2 C. Very right answer. ये भी ठीक है, एकदम ठीक है, right answer. अब जो देने जा रहा हूं ये इतिहास याद रखेगा. मैंने ऐसा नहीं है, मैंने सिंपली है, बट यू हैव टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. चलो कंप्लीटली डिफरेंट एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं. कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर्स. देखो पिछला शाम से एकदम अलग है, और ये भी. ये भी कंप्लीटली डिफरेंट. अभी हुआ नहीं है, होगा. अभी लेट मी ड्रॉ दिस. ये ऐसा है. ओ, ये देख के लग रहा है, देखो सर का मन में ये था. देखो तब से हम लोग सोच के बैठे रहे, आस लगाए बैठा है कि भाई इजी सम होगा. देखो कैसा सम दे दिया. देखो, और बोल रहे थे कंप्लीटली डिफरेंट. सोचे थोड़ा बहुत एक आध सम, एक आध कैपेसिटर अलग होगा, और देखो क्या हो गया, नक्शा चेंज. और ये कौन है भाई? ये भी तो उतना ऐसे ही होने जा रहा था. भाई तू मत टफ मत होना, तू ठीक ठाक होना. हाँ, लाइफ में आगे बढ़ना और सिंपल रहना लाइफ में. कितना भी बोल दो, लेकिन ये भी जीत पकड़ के बैठा है कि हमको कुछ अलग होना है. ये ऐसा हो गया. लो, ये कैपेसिटर का फर्स्ट फिगर कॉम्बिनेशन का, ये सेकंड. दोनों को ड्रॉ करो, और जैसे मैं बोलते आ रहा हूं, काउंट द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स सो दैट यू आर राइट इन असेसिंग दैट. ठीक है, चलो बोलो. सेकेंड एटा 6C/5. ठीक है. नीलम और फर्स्ट एटा ट्राई करो. हाँ 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 ठीक, ওটা আমি বলতে ভুলে গেছি. Each capacitance is C here in both the cases. Each capacitance is C. একটা জিনিস দেখাবো. একটা ইলেকট্রিকের তারটা গিট মেরে রেখেছিল, ওটাকে আবার পাকিয়ে দিয়েছেন? পাকিয়ে রেখেছি, সোজা করে দেবো? হ্যাঁ, যেমন ছিল আগে অমনি দিয়ে সোজা করে দিচ্ছি। দেন. হবে? হুম, ঠিক আছে. 6/5 তো ঠিক আছে.
6/5টা ঠিক হয়ে যাবে। বাট ফার্স্ট স্যার এটা শর্ট সার্কিট করুন না স্যার, শর্ট সার্কিট ফার্স্ট স্টেপটা। আমি কিছু বলবো না, আগে আনসারটা বলো তারপরে। একটু ভাবো, আমি একটু টাইম দিচ্ছি, কারণ না ভাবলে না শিখতে পারবে না, সব যদি বলে দিই না শিখতে পারবে না। একটু ভাবো, অনেক টাইম আছে এখন। একটু টাইম দাও। হ্যাঁ, ওই পয়েন্টটাকে ভাবো, ওটাকে একটু ফোকাস করো আগের আইডিয়াতে, ঠিক পারবে। ওইটাই পয়েন্ট, ওটাই পয়েন্ট, যে চার্জটা ডিভাইড হওয়ার পর এই পার্টটা তো ঠিক আছে, এই পার্টটা কি হবে সেটা ভাবো, নিয়ে আনসারটা কত হবে বলো। আরেকবার ভাবো, আরেকবার গিভ ইট আ সেকেন্ড থট अगेन, দেখো না কি হয়। তারপর এটাকে কেটে আরেকবার করি না, কিছু না, সবাইকে বলুন তো আবার কেটে দিতে, কেটে আবার স্টার্ট করে। This is a wire single, and this wire में क्या है, some capacitors are connected at different positions, ठीक है। Now if we do this कि यहाँ पे तार को ऐसे ट्विस्ट किए ऐसे, and if we hold this like this, देखो this is the circuit given in the board, ये सर्किट है। अब ये सर्किट में the red and black parts are not in contact with each other, तो नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, इसको कैसे मानेंगे। अच्छा, यू जस्ट होल्ड इट अ लिटिल टाइट हियर। रेड एंड ब्लैक पार्ट आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। हाउ कैन वी शो दैट? वी कैन शो दैट बाय थिंकिंग दैट सी रेड वन इज मूविंग ओवर द ब्लैक वन, ये गैप है बीच में, ऐसे गैप है, दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, ऐसा है, थोड़ा सा ऐसे गैप है। नाउ दिस इज द सेकेंड फिगर, second sum given like this. Now if we just do this thing, unfold it like this, then it becomes a single wire in which, ये single wire में क्या है, ये black part में एक कैपेसिटर है या तो दो, ये upper part में कुछ कैपेसिटर्स है, और ये साइड में भी कुछ कैपेसिटर्स है as he is holding। पहले तीन सेगमेंट में कुछ कुछ करके कैपेसिटर्स है, all are connected to a single wire। तो single wire माने सीरीज, so all capacitors here are connected in series। Yes, yes, so capacitor here, 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 all are in series, and if there goes another capacitor below this, then this one is parallel with all these connected in series। Now ये इतना सीधा आदमी है पर दिखाया गया ट्विस्टेड मैनर में। how these two ends were twisted like this, ऐसे करके दिखाया गया है, like this। oh इसको पकड़ो, hold it here। so ना छोटा बड़ा हो गया, hold it here। I am doing that, you and hold it here, yes। so these two ends are like this, okay। now if they are for the first case, see the first case now, if these two wires are connected at this junction, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट किया हुआ है like this, then what happens, ये ऊपर वाला पार्ट बेकार हो गया, this is for no use।
Why? Because if these two parts of the wire are connected at the same point here, then what happens? This end has the same voltage, and after coming through this part and red part, ये black part का starting और red part का starting जहाँ पे मैं पकड़ के रखा हूँ have the same potential. क्यों बोलो तो they are at the same point. Now why should a charge travel the whole path through a wire from same voltage to same voltage? No, it will not. Why? Charges travel from high voltage to low voltage, not same voltage to same voltage. So as these two ends of this loop, this is called a loop, and I call it a dead loop. मतलब it has got no use in conducting charges. तो होगा क्या देखो, अगर तुम ऐसा लूप बना के एक तार का ऐसा लूप बना दिए गोल, then connect his hand and his hand, I mean this end and this end with a battery like this, then charge will flow like this through this wire. ये ऊपर का लूप बेकार, ये ऊपर का लूप बेकार, no charges will flow through this, बेकार हो गया ये. So ये यहाँ से उठ के डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा. Why should it flow through this dead loop जिसका स्टार्टिंग भी जितना वोल्टेज एंड भी उतना ही वोल्टेज? सो नो चार्ज विल फ्लो थ्रू दिस डेड लूप. सो कंप्लीट चार्ज विल फ्लो थ्रू दिस ओनली. Okay, that's why the upper part of the first figure is of no use. That is called a dead loop. That is it. Okay, thank you. Dead loop, याद रखना. Sir, that might be the short circuit হবে. Yeah. Short করে যাবে. Yeah, so what happens here, see the charge distribution here. Charge distribution is like this. Q charge enters, then it gets distributed into two. Say this is Q1. अरे Q1 को तो मोक्ष का प्राप्ति हो गया. That means it directly gets point B to move out of it. Entry और exit कितना easy है देखो इसका. Q1. But Q2 out of this total, this Q2 वो ब्रांचिंग हो गया. दैट मीन्स दीज टू पार्ट्स आर इन पैरेलल. नाउ Q2 इसमें से गया, इसमें से गया. अब चार्ज जाता नहीं है, बट ऐसे सोचने से इजी हो जाता है. Q2 चार्ज ऐसे फ्लो करके गया, एंड देन आफ्टर रीचिंग दिस एंड, एज आई टोल्ड यू दैट इट वुड बी कमिंग डाउन लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. सो दिस अपर पार्ट ऑफ द सर्किट is of no use. Dead loop. This is dead loop. Yes. So this is dead loop. That means it has got no function in storing charges. So charges will not care to enter this loop and store charges, isn't? So no charges will flow through this. It is as good and as easy as this, because the upper part is of no use. So the equivalent capacitance for this can easily be found thinking like this. These two are in series, C and C will become C by 2, and that C by 2 is in parallel with this C. So C plus C by 2 gives you 3 by 2C. Right answer. The first one was a little tough for this dead loop. Just coming to that. The second one, if we unfold this corner and this corner like this, so this cross becomes unfolded like this. So some capacitance on this, some capacitance on this, and some capacitance on this are in series. So all these are in series. That means if you think like this, again with that idea, Q charge enters, and out of that Q charge, Q1 directly goes to the exit point. But Q2 charge, think like this, Q2 charge goes through this, एक ही तार है, goes through this, एक ही तार है, comes back through this, एक ही तार है, comes back through this, and finally goes through the exit point. And here this bridge thing shows that these two wires are not in contact. So no loss of charge here, so total charge will come back to this. So we see every capacitor is passing Q2 charge through them. That's why अब गिनेंगे नंबर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 capacitors are there, so they are in series. So series में identical capacitors होने से C by N, that means C by 5, and उसका साथ देखो ये कैपेसिटर, ये जो अकेला था वो पैरेलल में है, so it would be 6 by 5 C. It would be 6 by 5 C.
तो और एक ट्राई करके देखो, तो ये सिंपल दिखा रहा हूँ, और एक ट्राई करके देखो कि इफ देयर इज अ कैपेसिटर C and another capacitor C and another C and another C, another C, बाप रे कितना C भाई साहब, रुको, C, 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 C. So चलो एक और ले लो, रहा नहीं गया हमसे, दे दिए C. This is why students are better than teachers because they are good from heart. ये देखो, दो चार कम देने से क्या आता जाता भाई ना, ज्यादा देना है, तो चलो let us do this. तो we have to find equivalent capacitance. ओ C नहीं दे पाएंगे, C नहीं दे पाएंगे, यहाँ पे ये एक मुश्किल है. ए बी ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई दे देंगे बिकॉज सी इज द कैपेसिटेंस ना, दैट्स वाई. सो यू हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एक्स. व्हाट वुड बी द कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड एक्स प्रोवाइडेड ऑल द कैपेसिटर्स आर ऑफ कैपेसिटेंस सी. दैट इज योर टास्क. बाकी होगा यूं भाई, कौन काम का है कौन काम का नहीं है थोड़ा एक बार देख लो, लेकिन टेक्निक वही करेंगे. ये एंट्री पॉइंट क्यू चार्ज बुलाओ, आया भाई क्यू चार्ज आया, प्लीज वेलकम. क्यू चार्ज आया, ओके. नाउ इससे क्यू चार्ज गया, ठीक है. खेल तो यहां पे होगा. सम पार्ट ऑफ दिस विल फ्लो थ्रू दिस. मान लो इसको Q1 ले लेता हूं, एंड सम पार्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द चार्ज विल फ्लो थ्रू दिस. इसको Q2 ले लेता हूं. अब जो Q2 इसमें से पास करेगा वही Q2 तो इसमें से भी पास करेगा. दैट मीन्स ये दोनों सीरीज में है. समझ में आ गया. अब ये बोल रहा है कि भाई मेरा क्या होगा, मैं क्या कोई नहीं हूं क्या? बोला नहीं तू कोई नहीं है. क्यों? बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सर्किट. बिकॉज मैं बोला था एंट्री और एग्जिट, ऐसा करके कुछ बोला था. एंट्री एग्जिट मीन्स कि ये टारगेट इसका है कि फ्रॉम ए इट हैज टू रीच एक्स, इट विल नेवर गो बैक. पीछे नहीं जाना इसको, ये सामने जाएगा टू द पॉइंट एक्स. वो करने के लिए जो पाथ अपनाना पड़ेगा इट विल एक्सेप्ट दैट वन. सो ये Q2 ऐसे गया. सो वी कैन सी दिस एंड दिस आर इन सीरीज. तो सीरीज में होने से C और C का सीरीज हो जाता है C/2. चलो एक ये मिल गया, और ये पार्ट बेकार हो गया क्योंकि चार्ज पीछे नहीं आना है. अच्छा, दिस इज Q2. और Q1 का स्टोरी क्या है? Q1 का स्टोरी यहां तक आके रुक गया था. बाकी वो देख रहा है, अब वो देख रहा है कि मैं ब्रांचिंग हो जाऊं कि सिर्फ नीचे से निकल जाऊं. बोला नहीं नीचे से निकल जा. इसका मूड ठीक नहीं है. क्यों मूड ठीक नहीं है? बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सर्किट ईदर. ये भी सर्किट का पार्ट नहीं है बिकॉज इसको जाना है एक्स में, बी को जाके क्या करेगा, उसलिए ये पार्ट भी सर्किट में नहीं है. दैट्स व्हाई दिस Q1 चार्ज विल ऑल्सो फ्लो थ्रू दिस सेम चार्ज और जाके यहां से निकलेगा. दैट मीन्स वी कैन वेल अंडरस्टैंड दैट दिस एंड दिस, क्योंकि they are conducting same charges, that means storing same charges actually, are also in series. और सीरीज में इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? C/2. सो ये C/2, ये C/2. इसका रेड्यूस सर्किट जानते हो कैसा होगा? ये पॉइंट A है एंड हियर इज अ कैपेसिटर C, और ये ब्रांच देखो ऐसे, ये ब्रांच इसका हो गया C/2. में थोड़ा टेढ़ा करके ड्रॉ कर रहा हूँ C/2. और ये ब्रांच को देखो नीचे वाला, ये भी कितना हो गया C/2. चल ये भी हो गया C/2. नाउ ये C/2 और ये C/2 दोनों पैरेलल में है बिकॉज ब्रांचिंग हो गया था ये पैरेलल में. और फाइनली इसके लिए इंतजार कर रहा था गेट का बाहर कौन? C, कि आ जाओ, यू हैव रीच्ड योर सक्सेस. मिल गया लाइफ में सक्सेस. ये स्टोरी था इसका. बाकी सिंपल तो है. C/2 C/2 ये दोनों देख रहे हैं कि अच्छा ये दोनों पैरेलल में है. These two will make equivalent. C/2 plus C/2 is C. So now the reduced circuit finally is, देखो यहां पे ड्रॉ करो, A कैपेसिटर, देन ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया? C. तो C हो गया. और लास्ट में इंतजार कर रहा है C, ये भी C. तो C between A and X are in series finally. इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C/3.
यही आंसर है। तो हमारे तीनटे में सेम है तो सी बाई सी होते हैं दैट टाइप शॉर्टकट यस। Considering those things. Okay, reduce circuit draw करना, because more you draw, more it becomes easy for you. Maybe not this one, ये मेरे से बनाने, तो अगला बनेगा ना, but मैं तो सीख रहा हूँ कुछ ना कुछ, तो that is your gain. भले तुमसे बने या ना बने, doesn't matter. चलो ये जो सीख लिए, इसका बाद और एक टॉपिक कर लेते हैं. Let that be the last topic today's class. So charge distribution is simple theory. It is a story of two charges given to these spheres. मान लो इसका रेडियस R1 है और कैपेसिटेंस कितना है C1. इसको चार्ज दिया हुआ है Q1 और ये और एक कैपेसिटर है जिसका रेडियस मान लो R2 है और कैपेसिटेंस कितना C2. तो इसमें चार्ज दिया हुआ Q2. Now if these two are joined, ये और ये ज्वाइन कर दिए, ज्वाइंड बाय अ वायर, दोनों को ज्वाइन कर दिया बाय अ वायर. होगा क्या? चार्जेस विल फ्लो, चार्जेस विल रिकम्बाइन. इसी को बोल रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू कैपेसिटर्स. चार्जेस विल फ्लो. क्वेश्चन ये है कब तक फ्लो करेगा? फ्लो करता ही रहेगा लाइफ लॉन्ग? नो. और दूसरा कि मान लो ये दिया हुआ, अगर ये दिया हुआ रहता कि Q2 ग्रेटर देन Q1, तो चार्ज किधर फ्लो करता? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैन वी से फ्रॉम हियर फ्लो ऑफ चार्ज Q1 टू Q2 कि Q2 की Q1 टू Q1, क्या बोला मैं, Q1 टू Q2 या तो Q2 टू Q1. Q2 greater than Q1, it doesn't guarantee charges flow from higher charge to lower charge. Then what guarantees? Voltage. Voltage guarantees it, not charge. I'm giving you an example. पहले भी बोला था ये याद रखने के लिए कि there is a suppose ट्यूब, वेरी थिन ट्यूब, पतला ट्यूब, 2 मग पानी डाल दिए, इतना पानी हो गया. और ये मान लो कि बहुत बड़ा टैंक है पानी का, उसमें बहुत ज्यादा पानी है बट ऑफ लेस हाइट. नाउ इफ यू रिमूव दिस वल्व, ये वल्व को अगर खोल दिए तो वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर हाइट, ना कि ज्यादा अमाउंट टू लेस अमाउंट. बेस्ड ऑन हाइट की बेस्ड ऑन अमाउंट दैट वाटर फ्लोज हाइट. Similarly, I had told you that compare height to voltage. More height, इसको ऐसा सोच लो more voltage, और इसका less height ऐसा सोच लो इसका less voltage. So if you remove this valve, similarly if you connect them, then water will flow. यहाँ पे क्या होगा देख लेते हैं. Similar होगा, एकदम similar, same to same. क्या? इसका पानी का height decrease करेगा and height of this larger bigger container, इसका हाइट थोड़ा इंक्रीज करेगा. करते करते ऐसा होगा, क्या हो गया, इसका हाइट कम होते होते विल कम टू अ सर्टेन लो और इसका हाइट बढ़ते बढ़ते विल कम टू अ सर्टेन हाई, so that their height of the water levels are equal. Then the flow of water will stop. Similarly, हाइट का साथ किसको कंपेयर करना है? वोल्टेज. यहां पे भी होगा. If you connect them by a wire, जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा, वी डोंट नो किसका वोल्टेज ज्यादा होगा, तो क्या कंडीशन क्या होगा? वोल्टेज का फॉर्मूला याद आ रहा है? Q इक्वल्स टू CV याद आ रहा है? तो V कितना हो जाएगा? इतना था. वी कैन इजिली चेक. इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? V2, दैट वुड बी गिवन बाय Q बाय C, दैट मीन्स Q2 बाय C2. अब अगर ऐसा हुआ, ये डज नॉट गारंटी, ऐसा करके लिख के रखता हूं. क्यों? असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन भी तो आना है. असर्शन रीजनिंग, देयर आल्सो यू मे फेस दिस. डज नॉट गारंटी. क्या गारंटी नहीं करता है? गारंटी नहीं करता कि चार्ज यहां से उधर जाएगा कि उधर से इधर. तो क्या गारंटी करता है? इफ V1 ग्रेटर देन V2, माने वोल्टेज ये गारंटी देता है V1 ग्रेटर देन V2, देन
Q1 टू Q2 चार्ज फ्लो होगा, अदरवाइज उल्टा। if suppose V2 greater than V1, the charges will flow from 2 to 1, तो डिपेंडिंग ऑन वोल्टेज किसका ज्यादा है चार्जेस विल फ्लो। चलो एक पार्ट क्लियर हो, फर्स्ट पार्ट, चार्जेस विल फ्लो डिपेंडिंग ऑन विच हैज मोर वोल्टेज। ठीक, अब नेक्स्ट केस देखो इसका, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वहां पे जैसे था ना कि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ये जैसे हो गया था वैसे आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ये दोनों को फिर से अब सेपरेट कर दिए, या तो टच करके रखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है, और तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं चार्ज का, जो होना था हो गया। सो दैट इसका वोल्टेज V1 था, अब हो गया VCM, और इसका वोल्टेज V2 था, अब इसका वोल्टेज हो गया है VCM। CM माने कॉमन, वी मीन टू से VCM, CM फॉर कॉमन। So its voltage has been VCM and V common voltage कुछ भी होगा, इसका वोल्टेज VCM V common। अगर हम लोग ले लेते हैं V1 ग्रेटर देन V2, तो समझ लो V1 ज्यादा था V2 कम था, V1 ज्यादा V2 कम, सो ऑब्वियसली चार्जेस इधर ही गया होगा Q1 टू Q2, सो दैट इट्स फाइनल वोल्टेज V कॉमन, उसका भी फाइनल वोल्टेज V कॉमन। ठीक है, अब बोलो तो इसका चार्ज क्या और Q1 रहेगा, बिकॉज इट हैज लॉस्ट सम चार्ज ना, बिकॉज हाई वोल्टेज था तो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज सप्लाई करता गया तो चार्ज, एज इट हैज बीन सप्लाइंग वाटर टू दैट पार्ट ऑफ द कंटेनर, तो इसका तो हाइट घटेगा ना, सिमिलरली इसका भी चार्ज कम होगा धीरे धीरे। ठीक, तो आइडिया बनाओ, मोर इफ यू गिव चार्ज टू अ बॉडी इट्स वोल्टेज इंक्रीजेस, सो इफ यू ड्रॉ आउट चार्ज फ्रॉम अ बॉडी इट्स वोल्टेज डिक्रीजेस। सो इफ high voltage low voltage connected, so it loses charge, high voltage to low voltage, so it loses charge, माने इसका वोल्टेज भी धीरे धीरे स्टार्ट डिक्रीजिंग, डिक्रीज करते करते V1 से कम होके कितना बना, फ्रॉम V1 टू V कॉमन। सिमिलरली इसमें चार्ज आ रहा है, तो इफ यू ऐड वाटर इट्स हाइट राइजेस, इफ यू ऐड चार्ज इट्स वोल्टेज राइजेस। सो इसमें चार्ज आ रहा है, इसका वोल्टेज तो V2 से बढ़ते बढ़ते कितना बन गया V कॉमन, बट हुआ दोनों का सेम V कॉमन। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी। ऐसा अगर हुआ सो इसका चार्ज तो ऑब्वियसली हैज चेंज, लेट अस कॉल इट Q1 डैश, इसका चार्ज श्योरली हैज चेंज फ्रॉम Q2 टू, इसको भी बोलेंगे Q2 डैश, जस्ट पुट डैश, दैट मीन्स दे हैव चेंज्ड, एंड वी विल नाउ फाइंड these change values, that is the last line. This is our target. We are going to find how much charge left with it and that. That is our target. Okay. चलो इसको करने के लिए and for doing similar type of numericals as well, आइडिया को सीखो। आइडिया को क्या सीखना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये आइडिया है। फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दोगे ना, ये याद नहीं रहेगा फिर कि ऑन बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव डन दिस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक लाइन लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस फर्स्ट चैप्टर। वैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, पहले ना बिफोर कनेक्टिंग द चार्जेस वेयर हाउ मच, इसमें था Q1, उसमें कितना था Q2, स्फीयर 1 में Q1 था, उसमें था Q2। नाउ इफ यू आफ्टर यू कनेक्टेड इट बाय अ वायर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, देन फाइनली Q1 becomes Q1 डैश, Q2 becomes Q2 डैश, तो नाउ द टोटल चार्ज Q1 डैश और Q2 डैश, बट टोटल चार्ज सेम, ये दोनों मिला के जो था अभी भी दोनों मिला के सेम ही है, एक में कम हो गया दूसरे में बढ़ गया। सो Q इक्वल्स टू CV, वन फॉर्मूला ओनली, Q इक्वल्स टू CV, Q1 क्या लिखेंगे C1 V1, Q2 C2 V2, Q1 डैश, Q1 डैश क्या लिखेंगे फिर से CV, बट दिस टाइम C और C रहेगा, कैपेसिटेंस सेम रहेगा आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यस, कैपेसिटेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन radius, and radius of the sphere does not change if it loses charges or attains some charges. कैसे कैपेसिटेंस रेडियस के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, देखो तो याद है क्या, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, फर्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर सीखे थे, तब उसका फॉर्मूला कितना आया था, 4πε0 कांस्टेंट इनटू रेडियस। सिर्फ रेडियस डज नॉट चेंज, लोहा का है कैपेसिटर, उसका रेडियस कम होगा, क्यों चेंज होगा, तो R कांस्टेंट, सो कैपेसिटेंस रिमेन्स सेम, चेंज नहीं होगा, याद रखना इसको। हाँ, कैपेसिटेंस डज नॉट चेंज, सो C1 रिमेन्स C1, तो और क्या चेंज होगा,
V1 has become how much? V common. Similarly C2 रहेगा, V इसका भी V कॉमन, V कॉमन को क्या करना है? कॉमन ले लो. That means C1 plus C2 होगा. From this our first answer comes out like this. After connecting the capacitors, what would be the common voltage? That would be C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. And then the last line comes. Now the last line is, we are actually going to find what is the remaining charge now, Q1 dash. तो Q1 dash का formula तो एक ही है, Q equals to CV. What is the C of the first capacitor? Remains C1. What is the V of the first capacitor? V common, VCM. C1 into, what is the formula of VCM? This much. C1 V1, C2 V2, C1 plus C2. हो गया, खत्म. Similarly, Q2 dash, वह C2 V common इसका भी, C2 तो C2 है, V common same, C1 V1, C2 V2, C1 plus C2. हो गया. That is the charge distribution. You can put direct formula, this and this, to find Q1 and Q2. Based on this, you can write also one thing, that is just one part of this. खत्म हो गया क्या ना. If ये बहुत आता है, पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट. या ये क्या हो गया? नेगेटिव प्लेट ऑफ द अदर. एक का प्लस का साथ दूसरा का माइनस लगा दिया. मतलब प्लेट्स ऐसे होते हैं ना, प्लस माइनस, ये ऐसे होते हैं ना, प्लस माइनस. अब क्या किए कि इसको उल्टा कर लिए. इसको उल्टा कर लिए मैंने, दिस कैपेसिटर, इसको ना ऐसे उल्टा कर लिए. ओ भाई हो जा. हाँ, ये ऐसे हो गया. एंड देन व्हाट टेक्नोलॉजी. एंड देन these are connected like this. अब तो मुश्किल हो गया. प्लस ऑफ दिस कैन कनेक्ट विथ माइनस डायरेक्टली. ये तो वो हो गया एग्जाम हॉल में चैट जीपीटी अलाउड. तो ऐसा हो गया. सो प्लस चार्जेस विल बी रिकम्बाइनिंग विथ माइनस एंड देयर बाय मेकिंग जीरो, बट दे मे नॉट बी हैविंग इक्वल चार्जेस. मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें प्लस है 120 माइक्रोकूलम चार्ज प्लस प्लेट में, और इसमें है माइनस 80 माइक्रोकूलम चार्ज माइनस प्लेट में. मतलब क्या है? इट स्टोर्स 120 माइक्रोकूलम, इट स्टोर्स 80 माइक्रोकूलम, कैपेसिटी अलग अलग. नाउ इफ यू कनेक्ट देम, देन इसका प्लस और माइनस अगर कनेक्ट कर दोगे, प्लस 120 माइनस 80 मिलके कितना बचेगा? प्लस 40. प्लस 120 माइनस 80 बचेगा 40. नाउ 40 विल बी डिवाइडेड बिटवीन दीज टू. 80 प्लस और 80 माइनस तो गया, दे हैव रिकम्बाइंड एंड मेड देम जीरो. तो बाकी जो 40 बचा उसमें से कुछ इसे मिलेगा, बाकी का इसको. सो दैट वुड बी द केस. तो अब बात बोलूं, उतना सोचने का, जा क्या हो गया भाई, आजा. हाँ, उतना सोचने का और समझने का टाइम नहीं है एग्जाम में. तो क्या करेंगे? शॉर्टकट बता दे रहा हूं, ये कर देना. अगर एक का प्लस दूसरा का माइनस का लग जाता है, भी कॉमन C1 V1 और C2 V2 को सिर्फ माइनस कर देना. प्लेट अगर ऑपोजिट लग रहा है, नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज का वैल्यू ही तो CV है. CV है क्या? दिस इज नथिंग बट, याद करके देखो, ये कौन है? ये एक्चुअली Q1 है. ये कौन है? ये पहले जब दे वर नॉट कनेक्टेड तब का चार्ज है, C2 V2. तो अगर एक का Q1 और इसका Q2 उल्टा करके लगा देंगे तो इसका माइनस हो जाएगा, है ना. जस्ट डू दिस. बट कैपेसिटेंस, कैन इट बी नेगेटिव? नो, कैपेसिटेंस वाला पार्ट प्लस ही रखना. सो दिस वुड बी माइनस. तो ये हो जाएगा इसका कॉमन पोटेंशियल वाला फॉर्मूला. तो सिमिलरली Q1 डैश अब कितना हो जाएगा, जो वी फाउंड इन द लास्ट लाइन. Q1 डैश C1 इंटू V कॉमन, V कॉमन इतना होगा, ऊपर में सिर्फ माइनस. सिमिलरली Q2 डैश विल ऑल्सो बी C2 इंटू V कॉमन. सिमिलरली सिर्फ एक क्या है इसमें,
वन थिंग इज देयर जहां पे स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत होता है, मैं तो बोल रहा हूं करने का ही जरूरत नहीं, अनलेस इट कम्स इन योर बोर्ड, क्या डेरिवेशन पार्ट, बट द फाइनल आंसर यू शुड रिमेंबर. And I'll show you cases where we did the similar type of thing in class 11. Similar, so it will help you to remember. How? See, write this thing, then give us the same case चल रहा है, वही केस चल रहा है. लिखो EU माने एनर्जी इनिशियल, कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है उसका एक बेसिक फॉर्मूला ग्राफ से हम लोग बनाए थे. फिर वी कैन डू दैट बाय इंटीग्रेशन ऑल्सो. देखो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय हाफ सी वी स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला, हाफ सी वी स्क्वायर. अब बताओ पहला कैपेसिटर कितना है C1, उसका वोल्टेज कितना था V1. सेकेंड कैपेसिटर कितना था, हाफ C2 V2 स्क्वायर, इतना चार्ज उसमें इतना एनर्जी उसमें स्टोर था, हाफ C2 V2 स्क्वायर. तो टोटल एनर्जी कितना स्टोर था, प्लस ही होगा हमेशा, माइनस नहीं होगा. क्यों, स्केलर क्वांटिटी एनर्जी है ना. हो गया इतना, बस हो गया. यू फाइनल इतना है, हाफ C1 भी कितना है, भी कॉमन, हाफ C2 तो C2 ही है, भी कितना है, भी कॉमन. That means we can further work with this C1 plus C2 into V common square, half C1 plus C2 V common square. सोच लो V common फॉर्मूला याद था, ऐसा करके दिखाया था फॉर्मूला, C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2. ओके, C1 V1 देखो मैं क्या कर रहा हूँ, C2 V2 इज C1 V1 C2 V2 लिखा मैं C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2. तो अलग अलग से होल स्क्वायर कर लिए. बात एक ही है, V का स्क्वायर है ना, VCM स्क्वायर, तो C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर, अलग से C1 प्लस C2 स्क्वायर. आप देखो तो इस खींच के कर सकते हैं ऐसे, C1 प्लस C2 और इसमें है C1 प्लस C2 होल स्क्वायर. एक तो C1 प्लस C2 कैंसिल हो गया है ना. सो दिस इज इट. कितना बचा देखो, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिर्फ एक C1 प्लस C2, बस हुआ. तो बस यू इनिशियल यू फाइनल मिल गया. तो वी आर रेडी टू डू द लास्ट थिंग, दैट इज डिफरेंस इन एनर्जी EU. डिफरेंस इन एनर्जी, फाइनल एनर्जी था हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2 माइनस यू इनिशियल कितना था, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर. अनलेस ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लगेगा, बोर्ड एग्जाम में लगेगा, बट बोर्ड एग्जाम में एक चांस क्या है कि यू मे बी गिवन टू प्रूव दिस. और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सेक्शन D फॉर ISC और सेक्शन E फॉर CBSE, बोर्ड एग्जाम पैटर्न उसमें आ सकता है. फॉर दैट वी आर डूइंग दिस अ लिटिल डेरिवेशन. अरे नहीं भी आएगा, लिख देना लास्ट लाइन, क्या है उतना तो आना ही है, इफ यू कैन रिमेंबर दैट. अदरवाइज इफ यू कैन डू दैट, ओके अच्छा है, दिस माइनस दैट, इसमें C1 प्लस C2 LCM होगा. अच्छा, हाफ सबसे कॉमन लेके बाहर कर दिया कि हाफ भाई साहब बाहर आ जाओ, आ गया वो जेंटल पर्सन आ गया. अब क्या है, इसका तो ऊपर में जो है वही रहेगा, ठीक है ना. तो उसको ना स्क्वायर कर दो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर. कितना अच्छा जा रहा है दिन, देखो नॉर्मल A प्लस B होल स्क्वायर कर रहे हैं क्लास 12 में, प्लस 2 C1 V1 C2 V2, ये भी ठीक लगा. माइनस, अच्छा याद रखना दोनों ही माइनस है, ब्रैकेट का ब्रैकेट ओपन, दोनों ही माइनस. अब C1 V1 स्क्वायर, एक मैं दिखा दे रहा हूं, फॉलो दैट एंड गेट दैट. कैसे, इसका अरे कलर चेंज हो जाए भाई, ये चाइनीज बोर्ड कलर चेंज नहीं हो रहा. हाँ देखो देखो, अभी किया चेंज में कलर, क्या हो गया, फिर से कर रहा हूं, ये लो किया, ये हटाया, अब मैं दिखा रहा हूं कि इसको, हाँ ठीक है, दिस इनटू दिस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस. तो C1 इंटू, बिकॉज हाफ तो कॉमन ले लिया ना, तो C1 इंटू C1 V1 स्क्वायर क्या बन जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर.
अब C2 का साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? C1 C2 V1 स्क्वायर। C1 C2 V1 स्क्वायर बन गया। ओए देखो क्या होगा, हो गया दोनों का। अब ना ये दोनों का साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पर माइनस साइन है, याद रखना बीच में माइनस है, तो माइनस C1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, C1 C2 V2 स्क्वायर। और लास्ट बचा C2 से मल्टीप्लाई, माइनस भी है, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। भाई और मत जा, छोड़ दे भाई। हाँ ठीक है, बहुत झेल लिए, अब मुक्ति दिला भाई। हाँ इतना हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस, ढींचना होगा क्या? करना ही पड़ेगा। ये देखो ये ढींच क्यों, ये भी हो गया। कहाँ गया? हाउ मेनी टर्म्स आर लेफ्ट? 3। हाउ मेनी टर्म्स आर लेफ्ट? 3। और वो जो टर्म्स 3 लेफ्ट है ना, उसमें नोटिस करके देखो, मैं जो गोल कर रहा हूं ना वो कॉमन है। वो ये है, देखो C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है, और C1 C2 इसमें भी है। सो वी कैन टेक C1 C2 कॉमन। हाफ तो ऐसे जेंटल पर्सन था, बाहर था, C1 C2 बुलाने से आ गया, आ गया C1 C2। नीचे C1 प्लस C2 वो भी ठीक है नीचे, तो बाकी बचा क्या? विल जंप अ लाइन एंड राइट द आंसर डायरेक्टली एंड लेट दिस बी द लास्ट लाइन, और वो है मैं यहां से C1 C2 ले लिया, क्या बचा? 2 V1 V2। थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यहां से ले लिए, यहां से एक काम करते हैं, माइनस समेत ले लो, कंसीडर माइनस समेत कॉमन ले लो। दैट मीन्स कंसीडर दिस टू बी माइनस ऑफ C1 C2, बाहर ले लिया मैं, तो माइनस C1 C2 यहां से चला गया, क्या बचा? V1 स्क्वायर। माइनस C1 C2 चला गया, क्या बचा? प्लस V2 स्क्वायर। माइनस C1 C2 यहां पे है ही नहीं, तो बना देते हैं माइनस C1 C2 इंटू माइनस V1 V2, तब तो चलेगा। माइनस C1 C2 टेकन, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। सो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। अरे ये तो V1 माइनस, यस V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, आंसर खत्म। बट पहले एक चीज तुम लोगों को पूछा था, तुम लोग बोले थे C1, C2 ऑलवेज प्लस होगा कि माइनस? प्लस। कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर विल बी प्लस। C1 C2 का कोई दोष नहीं। देख रहे हैं सामने माइनस आ गया, अब हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं कि भाई कौन माइनस हो गया, C1 C2? बोला नहीं, हम लोग हमेशा प्लस। नीचे C1 C2 ऑलवेज प्लस, ये गया। अच्छा V1 माइनस V2 होल स्क्वायर है एंड दे आर नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर, सो दैट इज ऑलवेज प्लस। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि y इक्वल्स टू माइनस एक्स, यहां पे y पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो बिना सोचे बोलेंगे तो नेगेटिव ही बोलेंगे, बट x में भी पॉजिटिव और नेगेटिव ना, डिपेंडिंग ऑन दैट y का साइन प्लस माइनस आ सकता है। अगर x का वैल्यू में बोल दिया, कहीं पे ले लिया -5, अब y क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दैट मीन्स सोचना पड़ता है कि जिसका ऊपर डिपेंड कर रहा है वो कैसा है। तो हम लोग वैसे सोच रहे हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला मिला, ये देखो एक बार, यहाँ पे ये फॉर्मूला मिला, यहाँ पे सोच रहे हैं हम लोग कि भाई ये अल्टीमेटली माइनस आया कि प्लस आया, ये माइनस आ गया, एंड वी कैन अंडरस्टैंड दैट भाई दिस टर्म इज पॉजिटिव। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये होल स्क्वायर टर्म है, ये भी पॉजिटिव। सो माइनस ऑफ पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव, तो माइनस ऑफ पॉजिटिव मीन्स फाइनली क्या बना? नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। दैट मीन्स इसका नीचे ये लिख लो कि देयरफॉर U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये क्या बन गया? नेगेटिव। इसका क्या मतलब हो गया कि देयरफॉर U फाइनल जो एनर्जी है ना, कम पड़ गया इनिशियल से, तभी तो माइनस करने से नेगेटिव आ रहा है, फाइनली एनर्जी घट गया है। सो एनर्जी इज लेस आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसको लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, एनर्जी इज लेस आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस
नंबर वन. नंबर टू, दिस एनर्जी जितना कम हो गया कहां ये एनर्जी? एनर्जी तो कंजर्व्ड. दिस एनर्जी हीट्स अप किसको? कनेक्टिंग वायर्स. जो तार से इसको कनेक्ट किए थे ना दोनों स्फीयर्स को, वो गर्म हो जाएगा तार. व्हेन वी चार्ज आवर कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, एडाप्टर वायर गर्म हो जाता ना थोड़ा देर बाद, तो वही है. दे ऑल्सो कंडक्ट चार्जेस. ওই টেবিল করার জন্য ওটাকে মানে হিট আপ হয়ে যায়, হিটারে করে. हाँ. सो दिस क्वेश्चन में बी आस्क कि प्रूव दैट ऐसा होता है. फिर क्वेश्चन ये आता है कि अकाउंट फॉर दिस डिस्क्रिपेंसी, क्यों एनर्जी कम हो जाता है. तब ये बोलेंगे दैट एनर्जी हिट्स ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स. ये हो गया और हम लोगों का क्लास खत्म हो गया. जाते जाते याद है तो कौन सा, व्हाट वाज द फॉर्मूला चेंज इन एनर्जी? फाइनली क्या आया था? चेंज इन एनर्जी माइनस ऑफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 minus V2 whole square. Do you remember V1 minus V2? V1 and V2 were their voltages before they were connected together. ये था V1 और ये था V2. Voltages before connection. So that was it. Bye.